Now, the another topic from the book chapter globalization. What is the economic consequences? I mean impact of economic system under globalization on the economies of the world. You know very well that whenever we talk about economic globalization, not only we have to go through the economic impact, consequences, but we have to also discuss about the debates going on around the very economic system under globalization. We know very well that economic system or economic globalization is not confined to a particular players. We know very well that what roles are played by IMF and WTO regarding the stabilization of economic system throughout the world is in itself shows something the systems adopted. Secondly, economic globalization in itself should be mentioned here. So if we talk the roles played by them, these international bodies, apart from these international bodies, there are some other players like multinational companies or corporations and some stronger countries, they are also playing their roles. So this is the idea or thought of a particular international bodies. Apart from that, हम जब बात करें कि जब इसके ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ना केवल स्टेट इंटरनेशनल बॉडीज बल्कि अन्य इसके प्लेयर्स हैं। ब्रॉडर सेंस में बात आती है इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात कौन सबसे अधिक इसका गेन प्राप्त किया, किसको लेस गेन प्राप्त हुआ और कौन इससे लॉस किया। तो ये अपनी पॉइंट बन गई कि डिफरेंट प्लेयर्स इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड है, वी नो वेरी वेल आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर वाज economic flows. Here economic flows in the respect of goods, capitals, ideas and people. Means ग्लोबलाइजेशन ने जो गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया था गुड्स के इंपोर्ट पे, उस रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया और एक देश से दूसरे देश में ये ग्लोबलाइजेशन I mean imports of goods started being flowing or transported very well. सेकेंड है कि कैपिटल का मूवमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। दोज कंट्रीज विच आर रिच कंट्रीज, दे आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कैपिटल, दे इन्वेस्ट देयर मनी particularly in developing countries where they can have better returns, means अधिक से अधिक लाभ। ये इनका दृष्टिकोण है। क्यों है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का पॉपुलेशन अधिक है और साथ साथ मार्केट भी बहुत बड़ा है। सेकेंडली, तो इस तरह के चीज़ें हैं। और आइडियाज़ की बात करें, निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से आइडियाज़ का ट्रांसफ़र हुआ है
मीन्स टेक्नोलॉजी, चाहे इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो एंड अदर डिवाइसेस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, जिससे कोई भी देश अपनी डाटा, अपने रूल रेगुलेशंस को अच्छे ढंग से रेगुलेट कर सकती है। अब ये हमने 3 पढ़ा कि किस तरह से इनका मूवमेंट हुआ, गुड्स का, आइडियाज़ का और कैपिटल का। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पीपल, इट बिकम्स क्रिटिकल, क्योंकि लोग एक देश से दूसरे देश में easily cannot move or migrate, because some of the powerful countries, they have guarded their borders with a strict visa system. These visas have already restricted some of the countries and their people to move towards one country to another country. तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह के आइडियाज़ का मूवमेंट हुआ, हमारे कैपिटल का, हमारे गुड्स का इन बेटर वे, बट मूवमेंट्स ऑफ पीपल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन का एक तरफ अगर बेनिफिट्स है, तो एक तरफ कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध भी आवाज़ उठती है। अब बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट कि क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पूरी दुनिया में एक समान पड़ा है क्या? एक्चुअली all the systems adopted similarly in global system, but the impact of the system was different in different countries. Some of the countries had different impact, while other countries, they were affected a little, or we can say means they were not in a proper position to go through the globalization. What system has been concerned with globalization? सिमिलर वे में अडॉप्ट करने के बाद भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज और जो माइटी कंट्रीज हैं, दे हैव देयर इम्पैक्ट, दे आर कंप्लीटली कंसर्न्ड विद देयर इंटरेस्ट एंड देयर पीपल। फोर्थ पॉइंट है आपका कि ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध भी आवाज़ें उठती रहती हैं। आप नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन इज कंप्लीटली बेनिफिशियल। दोज हु आर कंसर्न्ड विद द सोसाइटी एंड पीपल, दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं स्टेट की, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री is restricted and it is only confined to law and order and national security. We have already discussed earlier. इसमें क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आप अपनाएंगे, वैसे लोग जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, उनका सोशल जस्टिस को लेकर के चिंता व्यक्त करना निश्चित रूप से स्वाभाविक है, इट्स ऑब्वियस। उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो लोग काफ़ी रिच हैं, पावरफुल हैं, दे गेट मच मोर बेनिफिटेड, वाइल अधिकतर संख्या में रहने वाले लोग, उनको कोई फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे इनका सपोर्ट में क्या कहना है कि वैसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर जॉब्स
and welfare schemes like health, education, sanitation, ये उनके लिए डिनाई कर दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज को, पावरफुल कंट्रीज को उससे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए बीच में इन्होंने कहा था कि कोई सोशल सेफगार्ड बननी चाहिए, अर्थात समाज के लिए रक्षा कवच, या फिर इस तरह से क्रिएशन होना चाहिए कि सोशल सेफ इंटरनेट की बात होनी चाहिए, अर्थात उस तरह की नेट की बात होनी चाहिए, सेफ्टी नेट की। उस सेफ्टी नेट के माध्यम से बहुत हद तक लोगों को, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं किसी भी देश के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। किंतु क्यों है? क्योंकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको किसी भी तरह का ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो छूट मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, उससे वो डिप्राइव हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ये तो और भी कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ सपोर्टर हैं जो सामाजिक न्याय के प्रति, लोगों के वेलफेयर के प्रति चिंतित है। उनका कहना है कि जो आपका सेफ्टी नेट है, सोशल सेफ्टी नेट, वो उतना वर्केबल नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको कभी कभी बीच बीच में उसको, उसके ऊपर एक क्लेम करनी चाहिए, उसको स्टॉप करनी चाहिए, उसको हॉल्ट देनी चाहिए, तब कहीं जाकर के लोगों का कल्याण होगा। नाउ द अदर पॉइंट, जो इसके सपोर्टर हैं उनका कहना है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, देयर वाज अ प्रॉपर इकोनॉमिक फ्लो थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई मीन अक्रॉस द वर्ल्ड। Whichever the society or country is the member of globalization, has adopted globalization, they have already supported that it has created such an atmosphere where there is good economic flow of the goods, capitals, people and ideas, by which a nation has become capable what it wants to do, can do it, and it has been also seen there is economic growth in those countries which have adopted globalization. तो क्या इसमें क्या है? आप जिस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आपकी वीकनेस है वो सुदृढ़ होती है, इनका कहना है। अब बात आगे आती है कि क्या आवश्यकता है ग्लोबलाइजेशन की। तो शुरू से ही ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया है। हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, और ग्लोबलाइजेशन में देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वेयर वन कंट्री इज एंटाइटल्ड टू इन्वेस्ट, send ideas, people in another countries, and they are vice versa are also have right to sell their own goods, invest money in other countries. So we get interconnected. Interconnectedness is completely the fact of globalization. ये सच है कि आज के मॉडर्न युग में हम एक दूसरे की सहायता लेते हैं। हाँ, अगर आपके ऊपर प्रेशर है, वॉलंटरली आप इस चीज़ को अपनाते हैं, आपके ऊपर किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज का, किसी स्ट्रॉन्ग नेशंस का दबाव नहीं है, देन इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पॉजिटिव consequences either in politics or in economic fields. तो हमें ये ध्यान देना है कि आज हम
पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन सारे इकोनॉमिक फ्लोज के माध्यम से, और इनके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत सारे हमारे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया है, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को जहाँ कहीं भी असक्षम समझते हैं उनको हम उस क्षेत्र में उनका सहयोग लेते हैं और दूसरे देशों को भी हम सहयोग करते हैं। तो इस तरह से आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पड़ा। ओके, थैंक यू।